اور بڑے دل سے میری خواہش تھی دنوں سے کہ آپ سے میری گفتگو ہو۔ میرا نام رانا منیر احمد ہے، میں پاکستان پنجاب ضلع سرگودا سے میرا تعلق ہے۔ جی سر۔ اور پہلی بات یہ کہ میں نہ حافظ ہوں نہ میں عالم ہوں۔ جی سر۔ آپ کی میں نے کئی مرتبہ یہ گفتگو سنی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ یہ کئی مرتبہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے۔ صحیح۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اور کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ کی زبان سے سنی ہے کہ خالق مالک ایک اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ سوال میرا آپ سے ہے، کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اللہ کے دو مرضی ہیں نا، ایک ہے ارادہ جو اللہ تعالی شریعت میں کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ، اس کی مرضی ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ سب لوگ ایمان لائیں۔ اللہ کس بات چاہتا ہے ہم سے؟ کہتا ہے کہ آپ سب ایمان لاؤ، سب کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی حرام نہ کہے، کوئی زنا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، سب بات تقوی ہے جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے۔ یہ جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایک ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ کرے۔ شریعت میں ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، کوئی اپنے ماں باپ کو ستائے، اذیت و آزار دے، کوئی جا کے کسی نبی کو گالی دے دے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی لوگ پرانے زمانے میں انبیاء کو قتل کرتے تھے، بہت سارے انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا نا۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا ایک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ وہ ایک ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ظاہر کیا۔ ایک ارادہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت میں ظاہر کیا کہ اللہ نے سب کو اختیار دیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اختیار دیے، مجھے بھی اختیار دیا، سب لوگوں کو، کافر کو بھی اختیار دیا۔ کافر کو یہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کافر کو یہ اختیار دیا کہ بھئی یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، سب کچھ حق ہے بھئی۔ اب اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہ کے کلمہ پڑھے، ایمان لائے، یا کہہ دے کہ نہیں بھئی میں بدبختی چاہتا ہوں، مجھے وہی شراب خوری پسند ہے، مجھے زنا پسند ہے، میں شریعت پہ آ کے، دین میں آ کے میں نے وہ سب سلسلے تو بند ہو جائیں گے نا، جو شہوت رانی ہے، جو شہوت طلبی ہے، وہ تو بند ہو جائے گا۔ یہ مجھے، میرے لیے دنیا پسند ہے، میں مسلمان کیوں ہو جاؤں، تو وہ اسی گناہ کے راستے پہ چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس پہ راضی ہے، راضی یعنی عالم ہے، نہ کہ یہ اس پہ ثواب دے گا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہیں ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے نا، کیوں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ یہاں پہ ایک مظلوم قتل ہوگا؟ بالکل اللہ کو پتہ تھا، اللہ روک نہیں سکتا تھا، بالکل روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ اگر کوئی ظلم کرنا چاہے، اس کے اختیار بھی ہے، اس کے پاس امکان بھی ہے، گناہ کر بھی سکتا ہے، گناہ کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، وہ گناہ کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عذاب اللہ نہیں بھیجے گا، اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ کوئی شخص کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اختیار ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے جا کے کافر بن جائے، مرتد ہو جائے، وہ بھی اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو رضا ہیں بھائی، اور دو ارادے ہیں۔ ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بولا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی، نبی نے تو نہیں فرمایا کہ تم گناہ نہیں کر سکتے نا، یہ تو نہیں بولا کہ تم مجبور ہو گناہ کرنا، تم کرو، یا تم گناہ تو تم اپنے اختیار کے بغیر کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہ کر سکتے ہو بھائی، گناہ وہ تو اللہ کی جانب سے عذاب تھوڑی آنی ہے کہ تم نے، اگر کوئی شراب پیتا ہے، اللہ وہاں پہ کوئی معجزہ کر کے روکے گا تو نہیں، شراب پیے گا وہ، کوئی اپنی ماں کو مارے گا، کوئی اپنی ماں کو گالی دے گا، جو بھی جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کرے گا۔ کب؟ قیامت میں۔ دنیا میں بھی آثار ہو سکتے ہیں، آخرت میں عذاب کرے گا۔ اچھا یہ نہ کرو، لیکن دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے علم سے ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ راضی نہیں اس معنوں میں کہ اس میں ثواب دے گا، یعنی اللہ نے جو دنیا خلق کیا ہے، مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ایک شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، رشوت جب کام پہ جاتا ہے تو لوگوں سے رشوت لیتا ہے، جس کے پاس رشوت کے پیسہ نہ ہو اس کو ذلیل کر کے دفتر سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگوں کے فعل کو اللہ جانتا ہے کہ ایسے کام کرے گا۔ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے بچوں کو ذبح کرتا تھا نا، بنی اسرائیل کے ساتھ، اتنا بڑا کہتا تھا میں خدا ہوں، اللہ جانتا تھا کہ یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کافی لمبا آپ کا جواب ہو گیا ہے، صحیح۔ تو جو بندہ نیک کام کرتا ہے وہ کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ اس کا جواب تھوڑا سا مجھے دے دو مختصر سا۔ وہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، ارادہ دیا، پاور دیا۔ آپ ریاض الجنہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ؟ مجھے نہیں معلوم ریاض الجنہ سے آپ کی کیا مراد ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہے ریاض الجنہ؟ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات آرام فرما رہے ہیں، آپ اس ٹکڑے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فردوس ہے نا، اللہ وہاں پہ نیکوکاروں کو لے کے جائے گا، شیعوں کو لے کے جائے گا، شیعوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہاں پر جو دو شیخین جو ہیں
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप अलैहिस्सलाम के उस रोजे के साथ जो जन्नत का टुकड़ा जिसको कहा गया वहाँ आराम फरमा रहे हैं, उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी नहीं है जो वहाँ पर दफन है? आप सुन लें देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो पत्थर मारते थे ना, पत्थर मारते थे, अल्लाह की मर्जी है या नहीं है? अल्लाह का कोई उसमें रजा नहीं है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे, गाली देते थे, अल्लाह की उसमें रजा नहीं थी, अल्लाह का गजब था उस पर। लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया था भाई कि जो लोग दुनिया में मुनाफिक काफिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता, अभी तक दुनिया को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजाक उड़ाते हैं, आप बात को घुमा फिरा के कहीं नहीं घुमा नहीं रहा, मैं खबर की तरफ आता हूं, मेरी बात सुन ले, खबर की तरफ आता हूं प्लीज, नहीं आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा, नहीं काट मेरी सकते। बात सुन, अल्लाह यार साहब मेरी बात सुन ले, आप बात को घुमा फिरा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो रियाजुल जन्नह है, जहाँ आप अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है कि ये जो जगह है जन्नत का टुकड़ा है, वहां पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आराम फरमा रहे हैं, वो अल्लाह के चाहने से आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह के चाहने से वहां पर वो उनकी कब्र मुबारक है, उनके मुतालिक आप क्या ख्याल कर रहे हैं? तो अब आपने कोई नई बात तो नहीं की ना, दोबारा सबका टाइम जाए, दोबारा अपने सवाल को तकरार किया। अब सुन लो ना, मैं जवाब मैं अपनी मर्जी से दूंगा, आपकी मर्जी से तोड़ ही दूंगा ना। अब सुन लेना, मेरा जवाब गलत हुआ तो लोग समझ जाएंगे जवाब गलत है। लेकिन जो लोग दुनिया में गुनाह करते हैं, इस तरह नहीं अल्लाह की मर्जी उसमें शामिल है। एक शख्स शराब पीता है, कहता है अल्लाह की मर्जी है कि मैं पीता हूं, अगर अल्लाह की रजा ना हो तो वो मुझे रोकेगा ना, मुझे रोक ले, इस पर अल्लाह की रजा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है, दुनिया ऐसा बनाया कि गुनाहकार गुनाह कर सकता है और नेकीकार नेकी कर सकता है, इसीलिए तो लोगों का इम्तिहान होता है ना। अब अबू बकर उमर वहां पे दफन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये उनकी हक़ानियत की दलील है, ये उनकी देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कब्रिस्तान में मदफून नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती प्रॉपर्टी में अपने घर में मदफून है, ठीक है ना। ये कोई अगर मुसलमानों का कब्रिस्तान होता ना कि ये अलग बात होती कि वहां पे कोई भी अपने मुर्दे लाशे को लाके दफन कर सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती प्रॉपर्टी में दफन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर रजा होती, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत होती कि मेरे बाद अबू बकर को, उसके बाद उमर को मेरे साथ दफन किया जाएगा, तो लाजिमी बात है ये शियों के खिलाफ बहुत बड़ी दलील होती, नाकाबिल रद्द दलील होती कि देखो शियो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये उनकी रजा पे दलालत करती है कि वो इन दोनों को से मोहब्बत करते हैं कि इनको मेरे साथ दफन करो, ठीक है ना। अगर ऐसी बात होती है, ये बात तो किसी के पास नहीं है ना, ना आप लोगों के पास, ना वहाबियों के पास, अहनाफ, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, मुस्नद अहमद, किसी में कोई ऐसी हदीस ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इन लोगों को किस लिए वहां पे दफन किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? ये तो कब्रिस्तान तो है नहीं, कब्रिस्तान में तो आदमी किसी भी कोने में आप अपने मुर्दे को लाओ, वहां पे दफन करो, ठीक है ना, कोई रोक तो नहीं सकता। मुसलमानों का कब्रिस्तान कोई नहीं रोक सकता, जब तक मुर्दा मुसलमान है तो आप कब्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, उनके जाती प्रॉपर्टी में लाशे को लेके आए हो, वहां पे कुल्हाड़ियां लेके आए हो, वहां पे तुमने जमीन खोदा है, अपने मुर्दे को वहां पे दफन किया, किसकी इजाजत से दफन किया? क्या यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म था, वसीयत कुछ भी नहीं था? क्या इनकी अबू बकर उमर की जाती प्रॉपर्टी? इसको म्यूट कर, नहीं इस तरह नहीं, मेरी बात जवाब खत्म नहीं हुआ, जवाब खत्म नहीं हुआ, जवाब खत्म, या ऑपरेटर इसको जवाब सुन लो, क्यों इधर दफन किया, जवाब सुन लो। ये उनकी अबू बकर उमर के जालिम होने की दलील है, ये उनकी फजीलत नहीं है, उनकी रजीलत है कि उनको वहां पे लाके किस लिए दफन किया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है तो तुम्हें किसने हक दिया? अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हक दिया, तुम इस बैत में से नहीं हो, क्यों इधर दफन किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जाती प्रॉपर्टी है, उनके वफात के बाद ये किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है? यहां पे दो है बातें, कुरान कह रहा है कि मीरास होती है, कुरान कहता है कि ये मीरास होती है, उनके अर्स को मिलता है ना, वो वरिथ सुलैमान दाऊद, यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब, यहया अलैहिस्सलाम को जकरिया से अर्स मिली है, सुलैमान को दाऊद से अर्स मिली, कुरान की रूह से यही है। और कुरान ने फरमाया कि युज़क्किरुकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपनी औलाद को मीरास से महरूम नहीं रखना। तो कुरान की रूह से देखें, सुन्नत के रूह से देखें तो हक किसका बनता है? मीरास बनता है। ये मीरास किसको मिलेगा? लाजमी बात है, मीरास उनकी बेटी को मिलेगा, क्योंकि उनको और बेटी थी नहीं वफात के वक्त उनकी। और अजवाज को आपके कौल के मुतालिक मिलेगा, अजवाज को लेकर 8 में से 1 हिस्सा मिलेगा ना, पूरा तो नहीं मिलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियां हैं, ये 1/8वां हिस्सा 9 बीवियों में तकसीम होगा। ये सुन नहीं रहा ना भाई, आप सुन नहीं रहे ना, ये बड़ी बदतमीजी की बात है। आप सवाल करते हैं पर देखें, ये बहुत ही बदतमीजी है कि आप सवाल करते हैं पर सवाल का जवाब नहीं सुनते और अपनी बात कर रहे होते हैं बीच में, ठीक है ना, निहायत ही बदतमीजी। अच्छा आप सुन लें, मीरास बनता है, ये जो मीरास बीवियों को मिलती है, ये 1/8वां 9 बीवियों में तकसीम होगी। आयशा को कितना मिलेगा? आयशा को
8वें में से 1/9 मिलेगा, यानी वो 1.5% मिलता है। एक आठवां कितना बनता है? एक आठवां बनता है 12.5%। 12.5% बनते हैं एक आठवां, 1/8। आसिफ भाई आप हैं, अच्छा। और 1/9 उसमें से कितना? 12.5% का 1/9 कितना बनता है? 1.25। 1.25 उससे भी शायद कम, 1.3 बनता है। तो आयशा को इतना मिलेगा। बाकी किसकी प्रॉपर्टी है? बाकी 87.5% ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, ये मीरास की रूह से अहले बैत अलैहिस्सलाम से इन लोगों ने इजाजत दिया। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? इजाजत लिया कि हम यहां अबू बकर उमर को दफन करना चाहते हैं? कोई इजाजत नहीं लिया। जैसे इनकी खिलाफत गस्ब किया, इन्होंने अपने जनाजे को भी गस्ब पे दफन किया ना। अच्छा, दूसरा, अगर हम कह दें कि आप जाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं इसमें एक सवाल कर सकता हूं इसी में? बस 1 मिनट मुझे दे दें, मैं कह दूं। और अगर हम कह दें ये सदका है, तो ये तो बैतुल माल का जुज बन जाता है ना, पूरे मुसलमानों का हक है। फिर तो अबू बकर उमर को हक तो नहीं मिलता कि वहां पे दफन करें अपने मुर्दे को, ठीक है, अपने मुर्दे को वहां पे फिर मुसलमानों से इनको इजाजत लेना जरूरी। सब मुसलमानों से इजाजत ले लो। अबू बकर उमर ने किसी से इजाजत लिया कि हम यहां पे अपने मैयत को दफन करना चाहते हैं? तो जिस लिहाज से भी देखो, उन दोनों का कब्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दफन किया गया, ये गस्ब है और सब मुसलमानों पे वाजिब है। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं कि दोनों को वहां से निकाल दे वहां से, क्योंकि गस्ब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती है, उनके मकान पे नाजायज कब्जा है, ठीक है ना। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हादीस हमारे पास कि जो ही उनका वहां पे दफन हुआ था, तो मलाइका वहां से उनको निकाल के लेके गए थे, उसी वक्त निकाल के लेके गए थे। अबू बकर उमर उधर नहीं है, उनको वादी बरहूद में जहन्नम में लेके गए थे मलाइका। या अहले बैत अलैहिस्सलाम की कई अहादीस है इस मसले पर। जी सर, बोले आप आसिफ भाई। बस एक चीजें कि एक तो कुरान में तो वैसे ये उम्महातुल मोमिनीन का है कि वो जो उनके हुजरे हैं वहां तक मुकीम करने का तो जिक्र भी आता है कि अपने घरों में ठहरी। और दूसरी बात ये है कि अगर विरासत की रूह से देखे तो बेटी का एक हिस्सा होता है और बेटे के 2 हिस्से। रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जिंदा होते तो उनके 2 हिस्से होते, और अगर विरासत की रूह से देखे तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक हिस्सा बनता है विरासत, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जहां तक कुरान की रूह है कि हुजुरात को बीवियों से निस्बत दिया ना, मैं पहले उसका जवाब दे देता हूं, बल्कि पहले मीरास का मैं दे देता हूं ना। अगर बेटा हो तो बेटे, अगर एक शख्स के एक बेटा है एक बेटी है ना, उसके मतलब 9 लाख रुपए हैं, 9 लाख रुपए, आदमी मर गया, 9 लाख रुपए बच गए, उसकी एक बेटी और एक बेटा, तो लाजमी बात है बेटे को 6 लाख देंगे, बेटी को 3 लाख देंगे ना। बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1। लेकिन अगर कोई नहीं दुनिया में, उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, तो बेटी सब 9 लाख बेटी को चले जाएंगे। अगर उसकी बीवी है, सारे पैसे बेटी को मिलेगा, सिवाय 1/8 बीवी को देंगे, बाकी जितने बच गए बेटी के। अगर उसकी 2 बीवियां उस शख्स के, तो 1/8 जो होगा ना, उसके 2 हिस्से करेंगे। एक बीवी को दूसरी बीवी को एक हिस्सा देंगे, बाकी जितना है 1/8 के बाद यानी 7/8 वो सब बेटी को चले जाएगा ना। अगर उसके पास 3 बीवियां इसी तरह, वो 1/8 को तकसीम करेंगे 3 बीवियां। अगर 10 बीवियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी ना, तो उसमें 1/8 9 में तकसीम होगा। अच्छा, जो कुरान की आयत है कि उसमें अज़वाज से इजाफा किया, फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम्हारे जो बुयूत हैं उसमें तुम उसमें रहो, बाहर ना निकलो, या उसमें जो कुरान की आयत की तिलावत करो। कुरान में इसी तरह इन बुयूत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निस्बत दी गई है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुयूत नबी में कौन से बुयूत नबी है? तो वही अज़वाज की घरों की बात हो रही है ना, वहां पे दाखिल ना होना। अच्छा, इसी तरह आपके जो शौहर का जो घर होता है ना, उसमें उसकी बीवी रहती है। अच्छा, जब तलाक दिया जाता है, कहता है तलाक के फौरन बाद उनको घर से ना निकाला करो जब तक इद्दा खत्म ना हो। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उनको जब औरत को तलाक दे दो तो उसको हक है कि भाई जब तक इद्दा खत्म ना हो शौहर के घर रहे, वहां से नहीं निकाल सकता कि भाई तलाक हो गया चले जाओ, नहीं, जब तक इद्दा खत्म ना हो जाए तो अब शौहर के घर, वहां पे भी घर, वो शौहर का घर है, कहां के बीवियों का घर। तो ये किस मुनासिबत से बोला गया? क्योंकि औरत उसमें रहती है ना। अभी आप कोई शख्स नौजवान है, टीनेजर है, वो वालिद साहब के साथ रहता है, कहता है मैं अपने घर जा रहा हूं,